Introduction to garbage in, garbage out. Garbage is unwanted or useless material. It is also known as refuse, rubbish, waste, trash, etc. Garbage is generated at many places, such as our homes, schools, shops, offices, etc. The most commonly thrown materials into the garbage are plastic bags and tins, which are used for wrapping. Sometimes we tend to buy things which are of no use, and ultimately they are thrown into the dustbin. Can you imagine what would happen if the garbage is not removed from our homes and surroundings? It would be disastrous. But still, we make our homes and surroundings dirty by our activities. For example, we often throw grown-up shells on Now see that from this, all of you know that today's topic is, which is our today's topic? Garbage in and garbage out. Garbage in and garbage out. Okay, so what is mean by garbage? Garbage mean by Yes, what is mean by garbage in English? Yes? Garbage is a waste material we throw in dustbin. Garbage is a waste material, ज्याला आपण मराठीमध्ये कचरा म्हणतो. Okay, so it is a waste material, and from where this garbage comes out? Yes? From our daily life. From our daily life. Yes? Tell me the sources of garbage. कचरा कहाँ से आता है? हाँ? in our office, home. In your office, our kitchen, okay, in school, in industries, in shop, and there are so many places that we use in our daily life. Okay, now you will see the beautiful song about the garbage. So where you should throw the garbage? Where you should throw the garbage? Garbage को कहाँ डालना है? कहीं पे भी डालना है. Yes? We should throw the garbage in the dustbin. In the dustbin. We should throw the garbage in the dustbin. Okay. So all of you know that there are different types of dustbin. If you are living in the city area, है ना, then you saw the different colors of dustbin. So what indicates the color? क्यों कलर दिया जाता है उसको? Yes. Sir, one is biodegradable. One is biodegradable, another is not biodegradable. But what the color indicates, or which color you see on the dustbin? Yes. Blue and green. Blue color and green color. Okay. तो ब्लू कलर वाला जो डस्टबिन है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? ब्लू कलर वाला जो डस्टबिन है उसके ऊपर कुछ लिखा है ना, और ग्रीन कलर वाला उसके ऊपर लिखा है. हाँ, वो तो हम बायोटिक और नॉन बायोटिक है. यस, बायोडिग्रेडेबल. हाँ, ड्राई और चलेगा. हिंदी में भी बोलो, हिंदी में बोलो. सूखा और ओला. हाँ, सूखा कचरा और ओला कचरा, है ना. सूखा कचरा का मतलब क्या है? किस में डालना है सूखा कचरा? ब्लू में डालना है या ग्रीन में डालना है? ब्लू में डालना है. जोर से बोलो. ब्लू में डालना है. और जो गीला कचरा है उसको ग्रीन में क्यों डालना है? अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं. उसको ग्रीन में क्यों डालना है ओला कचरा जो है? बिकॉज हाँ, यस, So they are biodegradable. बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल. इट इज द करेक्ट आंसर. जो बायोडिग्रेडेबल है. नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? द मटेरियल which is decomposed by the microorganism. जैसे बनाना पील्स हमने देखा है, फ्रूट्स है. अभी ये चित्र में हम क्या देख रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं बताओ? They are sitting. Where they are sitting? In the In the garden. Okay, in the park.
and what they are eating? Surrounders. ग्राउंडनट्स। और हम ग्राउंडनट खाने के बाद क्या करते हैं? कचरा जो है पूरा वहीं पे लॉन पे, अच्छे लॉन पे डाल देते हैं। ओके, इसको रीडिंग करो। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। We make our homes and surrounding dirty by our activities. हाँ, इसका मतलब क्या है? We make our homes and surrounding dirty by our activities. हाँ, प्रथमेश। सर इसका मतलब है, मतलब हम जो काम करते हैं रोज उसकी वजह से हमारी सराउंडिंग्स गंदी होती है। गंदी हो जाती है। हाँ, यस, बताओ, बैठो। इधर सामने आ जाओ, सामने आ जाओ यहाँ। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या क्या दिखता है, देखो, बताओ क्या क्या है। सर एक लड़का है सर। दिखा वहाँ पे क्या है? सर लड़का है सर। हाँ। सर दो लड़के हैं सर और काम खा रहे। और क्या दिख रहा है? Blip clip. डस्टबिन भी है। वेरी गुड। सर हियर डस्टबिन भी है और गार्डन है। बैठो। लेकिन कचरा डस्टबिन में है या डस्टबिन के बाहर में है? डस्टबिन के बाहर है। लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है कचरा डस्टबिन में भी है, यानी कुछ कचरा डस्टबिन में है, कुछ कचरा डस्टबिन के बाहर। ऐसा जरूरी है क्या कि हम लोग जो है कचरा डस्टबिन में ही डालें? नहीं, जरूरी नहीं ना। सब लोग डालते हैं डस्टबिन में? नहीं डालते। कई तो ऐसे दूर से थ्रो करते हैं। देखते हैं कि वो कागज का जो वेस्ट जो है ना बॉल, वो हमारा वो डस्टबिन में जाता है या नहीं जाता है? हाँ, देखते हैं ना, वो बाहर भी गिर जाता है। इसलिए वैसे तो कंपल्सरी हमने डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो भाई, और इतना ध्यान नहीं देते ना कचरा डस्टबिन में डालते समय। अगर हमारे पास बड़ी डस्टबिन है घर में जो रखी है वो, या कंटेनर है, तो ऐसे डालते समय कुछ नीचे भी गिरता है। तो नीचे जो गिरने वाला कचरा है उसको क्या करना चाहिए? उसको उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर नहीं उठाए तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। और क्या होगा? बोलो। गंदगी तो फैलेगी, लेकिन और क्या होगा? अब बोलो। हाँ, वहाँ पे मच्छर होंगे, मॉस्किटो होंगे, और मच्छर, हाँ, डेंगू है, मलेरिया है, बदबू आएंगी। These are the diseases which are spread through the malaria, और डेंगू जो है दे आर स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होते हैं, इसीलिए जो है। और अक्सर हम बस में भी ये एक्टिविटी करते हैं, मालूम है ना? बस में आप बैठते हैं ट्रैवल्स करते समय, या ट्रेन में बैठते हैं, तो जो हॉकर्स रहते हैं, फेरी वाले जो रहते हैं, वो कुछ बेचते हैं। स्टेशन आने के बाद हम फ्रूटी पीते हैं और फ्रूटी का डब्बा नीचे डाल देते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक पे डाल देते हैं। सो इज इट करेक्ट टू थ्रो द वेस्ट ऑन द रेलवे ट्रैक? क्या होता है? इतना बड़ा तो ट्रैक होता है रेलवे का, कुछ नहीं होता। अगर वहां डाले तो क्या होगा? यस सर सबने थोड़ा थोड़ा भी डाला तो हाँ, सबने थोड़ा थोड़ा डाला तो बहुत हो जाएगा ना। और पहली बात है, रेलवे ट्रैक पे डालना ही नहीं है ना। हम स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते हैं और बहुत सारा पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा। This is. Generally, we throw away the tickets when we get off a bus. At home, we also throw away many wastes, such as अभी हम घर में कौन से जो है वेस्ट और कहाँ फेंकते हैं? ब्रोकन टॉयज है ना। पहले जो है आपके पेरेंट्स आपको छोटे थे तो कुछ खिलौने लाते हैं, है ना। बर्थडे है तो खिलौने लाते हैं, और खिलौने के साथ हम बहुत कुछ खेलते हैं, लेकिन वो टूट जाने के बाद क्या करते हैं? उसको हाँ फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। मम्मी उसको उठा के अच्छी जगह रखती है ना। हमेशा जो है एक कंटेनर में उसको रखती है, लेकिन बाद में ज्यादा ही टूट गया तो उसको घर के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद में यूटेंसिल्स है। यूटेंसिल म्हणजे, यूटेंसिल का मतलब बर्तन, किचन के बर्तन जो भी है ना। उसके बाद में शूज है। शूज तो लाइफ लॉन्ग नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिया तो 12वीं तक वही चलेगा क्या? नहीं है, वो फटता है, खराब हो जाता है, डैमेज होता है, उसको भी हम बाहर फेंक देते हैं।
है ना। उसके बाद में ओल्ड क्लॉथ्स, है ना, बचपन के जो भी कपड़े हैं अभी आपको छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। ओके, सो दीज एक्टिविटीज आर नॉट गुड। ओके, सो यू मस्ट यूज द डस्टबिन, इसलिए घर में डस्टबिन रखना है। और घर में कितने प्रकार के डस्टबिन रखना है? 2 टाइप्स। ओके, 2 प्रकार की। नंबर 1 कौन सी है? बायोडिग्रेडेबल वाली, यानी जिसमें हम जो गीला कचरा है ना, बायोडिग्रेडेबल का मतलब गीला कचरा जिसमें वेजिटेबल पील है, बनाना पील है, वेजिटेबल के पार्ट्स है ना, जैसे सब्जी बनाते समय कोई भी सब्जी हम बनाते हैं ग्रीन वेजिटेबल, तो सभी चीजें उसकी यूज नहीं होती है, कुछ चीजें यूज होती है अच्छी वाली, कुछ चीजें हम उसको फेंक देते हैं। तो उसको जो है ग्रीन कलर वाले डस्टबिन में डालना है, उसको ग्रीन कलर देना है। तो रेडीमेड ग्रीन कलर की अगर डस्टबिन मिली तो बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर लिखना है गीला कचरा, है ना। किचन में जो भी वेस्ट है, कुछ झूठा बच जाता है ना, तो वो भी उसमें डालना है। और बाद में घर के पीछे में क्या करना है, एक गड्ढा बनाना, पीट यानी गड्ढा बनाना। और वो गड्ढे में क्या है, जो गीला कचरा है वो गड्ढे में डालना है। अब वो गड्ढे में क्यों डालना है? अरे गड्ढे में क्यों डालना है? बाहर में क्यों नहीं डालना इधर उधर? बाहर गंदगी फैलेगी। सर हमने अगर उसमें गड्ढे में डाला तो उसका खाद बन जाता है, मैन्योर बनता है, इसलिए तो मैंने बोला ना। जैसे बनाना पील है या कुछ फ्रूट्स का पोर्शन जो हम नहीं खाते हैं, है ना, तो उसको क्या करना है, या जो झूठा खाना है या बचा हुआ खाना है वो सब गड्ढे में डालना है। और क्या क्या डाल सकते हैं उसमें? हाँ, घास फूस जो निकलता है गार्डन में से वो भी आप डाल सकते हैं, है ना। जब पतझड़ होती है ना, वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो उसको जलाना है क्या? नहीं, उसको क्यों नहीं जलाना? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, पोल्यूशन होगा। वेरी गुड। तो आपको तो सब बातें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होता है तो पोल्यूशन होता है, स्मोक ज्यादा होता है, आंख में हमारे चले जाएगा, है ना, हमारी रोशनी जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, हमारे शरीर में जाएगा, है ना। हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो रेस्पिरेशन करते समय जो ऑक्सीजन है कहाँ पे जाता है? नोज में से कहाँ जाता है? अंदर यानी कहाँ? हाँ, लंग्स में जाता है। अगर उसकी जगह अगर स्मोक जाता है तो और क्या होगा? हाँ, कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है ना। इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग में घूमने के लिए जाते हैं, है ना, आफ्टरनून में नहीं जाते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में फिर बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री चालू हो जाती है, बहुत सारा धुआं भी निकलता है। ओके, तो ये जो है ये बहुत सिंपल बातें हैं। और दूसरी जो डस्टबिन है वो कौन से कलर की होनी चाहिए? ब्लू कलर की। अब उसमें सूखा कचरा डालना है। अब सूखा कचरा कौन सा हो सकता है? यस सर, ड्राई यूज। सूखा कचरा नहीं, अभी बायोडिग्रेडेबल हो गया, वो गीले कचरे में आ गया। ओके, जो पत्ते है, हाँ, पेपर्स है, यस पेपर्स, और प्लास्टिक है, कैरी बैग है, ब्रोकन टॉयज है, ठीक है। तो सूखा कचरा मतलब सूखा पेपर ऐसा नहीं, पेपर को अगर हम गड्ढे में डालते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो प्लांट से बनता है ना। पेपर जो बनते समय जो है उसके लिए प्लांट का यूज होता है, तो उसका मिट्टी हो जाती है, उसकी ह्यूमस बोलते हैं उसको, है ना। तो इसीलिए जो है सूखा कचरा यानी कांच है, प्लास्टिक है, ब्रोकन टॉयज है ना, मेटल भी है, तो उसको अलग अलग जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर आप देखते हैं कि उसको हम बेच सकते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक की ये चेयर है, ये अगर टूट जाती है तो इसको लेते हैं वापस और इसको कंपनी भेजा जाता है, और इसको बाद में क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उसको बेल्ट करते हैं। बेल्ट करने के बाद उसकी नई चीजें बनती है, प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक की बकेट है, ओके, वैसे कांच भी है, कांच की बॉटल है, ओके।
broken toys, utensils, old clothes, shoes, etc. Similarly, children too create a lot of garbage. ये कहाँ का दृश्य है? कहाँ का दृश्य है ये? हाँ, स्कूल का है ना? क्लासरूम का है। हम क्लासरूम में बैठे बैठे क्या करते हैं? क्या कर रहा है ये बच्चा? शार्प कर रहा है, पेंसिल को शार्प कर रहा है। तो पेंसिल को शार्प करने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो टेबल पे रखा है। कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाएगा और हम लिखते समय गलत हो गया तो कागज फाड़ देते हैं। एक बार गलत हो गया कागज फाड़ देते हैं, दूसरे बार गलत हो गया कागज फाड़ देते हैं, है ना? तो इसका मतलब जो है वो डस्टबिन बाजू में है, लेकिन हमने रखा उसको टेबल के ऊपर, है ना? So these are the bad practices. So you should throw this garbage in the proper place. Proper place यानी कौन सी है? डस्टबिन में ही डालना है। ओके, उसको हम जो है डस्टबिन में ही डालेंगे। For example, a child might go sharpening pencils or might tear pages from. और आपको मालूम है क्या ये जो शार्प किया है ना, जरूरी नहीं इसको डस्टबिन में ही डालना है। उसका क्या कर सकते हैं आप? हाँ, उसको खट्टा करके उसको काट के वो तो हो गया। और दूसरा यूज क्या? क्रिएटिव यूज कौन सा है? हाँ, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और क्या बना सकते हैं उसका? मालूम नहीं आपको? हाँ, इरेजर अलग बात हो गया। हाँ, और क्या बना सकते हैं? डेकोरेशन के लिए क्या कर सकते हैं? फ्लावर बना सकते हैं, उसका ग्रीटिंग बना सकते हैं। मालूम नहीं आपको? ग्रीटिंग बनता है उसका अच्छा, है ना? क्योंकि वो देखो अलग अलग कलर के हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। तो उसको जो है हम चिपकाएंगे कागज के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर भी चिपकाए तो भी अच्छा है। उसका पेड़ पौधा हम बना सकते हैं, ग्रीटिंग उसका बन जाएगा, है ना? तो कचरे में डालने से, है ना, वी कैन मेक द बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। ओके, उसके बाद में ये जो पेपर है, वेस्ट पेपर जो है, इसका हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम उसको डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? वेस्ट पेपर का क्रिएटिव वर्क क्या कर सकते हैं? क्रिएटिव, जैसे मैंने ग्रीटिंग बताया, तो इसका क्रिएटिव हाँ, उसके भी हम कुछ चीजें बना सकते हैं। पेपर मेसी सुना है आपने नाम? पेपर का क्या बनाते हैं? एरोप्लेन बना सकते हैं। हाँ, उसका एरोप्लेन भी बनता है। बहुत बार हम बनाते हैं, फिर फेंकते हैं, खेलते हैं और बाद में फिर डस्टबिन में जाता है ना? तो वो बताने की बात ही नहीं है, हम बताते हैं ना बहुत बार। हाँ, यस, हाँ, ये बहुत अच्छा है। उसकी एक बाजू में कुछ लिखा है और दूसरी बाजू जो है ब्लैंक है ना? तो उसका यूज हम कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको हम फोल्ड करके अपने जेब में रख सकते हैं और कोई काम आया तो उसे हाँ, उसको फोल्ड करके जेब में रखना है और कहीं हमें काम आता है या कुछ हमें याद आता है तो उसके ऊपर लिख देना, है ना? या कोई डेफिनेशन हमें याद हो रही है तो उसको भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना? तो कचरा जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नगर परिषद शेगांव जो है, यहाँ पे हमारे पीछे में ही बैक साइड में एक बहुत बड़ा कचरा डेपो है ना? कचरा डेपो का मतलब क्या है? पूरे शहर का कचरा जो है वो गाड़ी में इकट्ठा होती है। अपने विद्यालय में आते हैं क्या गाड़ी? देखा है आपने? तो गाड़ी जो है, गाड़ी के ऊपर दो जगह कुछ लिखा है, क्या पढ़ा है आपने कभी? उसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? सूखा कचरा और गीला कचरा। ओके, तो सूखे कचरे में ही जो भी चीजें है वो सूखे कचरे में डालना है, जो चीजें है गीली है वो गीले कचरे में डालना है, बाद में वो जाती कचरा डिपो में जाती है। मैंने देखा है, मैंने आपको बताया था हम एक दिन वहां पे जाएंगे। तो वो कचरा जो है डेली पूरे गांव का, शहर का इतना कचरा जमा होता है, फिर उसको जला देते हैं क्या वो वहाँ पे? क्या करते होंगे? आपने तो देखा नहीं, तो भी आप बता सकते हैं। हाँ, उसे रिसाइकल करते हैं। हाँ, वहाँ पे रिसाइकल करते हैं। पहले क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी सूखा कचरा है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हाँ, जैसे उसमें कांच की वस्तु है, प्लास्टिक है, रबर है, टायर है, पॉलीथीन है, बॉटल है,
ब्रोकन चेयर भी है, ब्रोकन टॉयज भी है। ऐसे गांव में तो कोई भी चीजें मिल जाती है ना, तो ये सब सूखे कचरे में उन्होंने एक जगह रख दी। तो लोग क्या करते हैं, यस सर पहले तो उसका सेपरेशन सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? मतलब सर पेपर और एक बनाना पील हो तो पेपर सूखे कचरे में जाएगा और बनाना गीले कचरे में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं क्या बताया, उस सूखे कचरे में ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक है, रबर है, मेटल है, तो उसको क्या करेंगे वो? सर कांच को अलग निकालेंगे सर। हाँ, अलग अलग मेटल को अलग। वेरी गुड। पहले कांच को निकालेंगे अलग, है ना, उसके बाद में जो है प्लास्टिक को अलग निकालेंगे। अब प्लास्टिक सभी सेम है क्या? नो सर। अभी जैसे ये प्लास्टिक है ना, ये जो बॉटल है प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की बॉटल है ना, तो ये बॉटल और ये चेयर वाली प्लास्टिक, ये एक ही है क्या? नो सर। तो इसका जो है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज होता है, इसका रिसाइकल होता है। जैसे कैरी बैग है, आपको मालूम है कैरी बैग यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो सर। क्यों नहीं करना चाहिए कैरी बैग का यूज? हाँ बताओ। हाँ, कैरी बैग रिसाइकल नहीं होती। अब क्यों नहीं होती होंगी रिसाइकल, ये भी तो एक सवाल है, क्यों नहीं होती होंगी? अब बताओ, कैरी बैग देखा है तुमने? हाँ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होती कैरी बैग रिसाइकल? ये चेयरें क्यों होती है, या प्लास्टिक की बकेट होती है, मग होता है, ठीक है, ओके। हाँ बोलो। सर क्योंकि प्लास्टिक की कैरी बैग में जो प्लास्टिक होता है वो बहुत पतला होता है, थीन होता है, बहुत पतला होता है ना, और इतना थीन जो है वो रिसाइकल नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैरी बैग के ऊपर बैन किया है, ठीक है, डू नॉट यूज कैरी बैग। कैरी बैग के ऊपर बैन किया है, कैरी बैग का यूज नहीं करना है। उसकी जगह क्या करना है? उसकी जगह कपड़े की और कागज की थैली यूज करनी। हाँ, कपड़े की थैली है, कापड़ की, ये कागज की है, उसको यूज करो, है ना। हमारे घर में पहले थी कपड़े की थैली थी, है ना, अभी तो प्लास्टिक की थैली आई है, वायर वाली थैली आती है, वो बहुत साल टिकती है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए। प्लास्टिक का जितना कम से कम यूज होता है उसका यूज हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे यूज एंड थ्रो वाला पेन है ना, पहले तो हम एक ही पेन लेते थे, उसको साल भर यूज करते थे, और एग्जाम के समय में उसको अच्छा क्लीन करके फिर तैयार रखते थे। इंक वाला पेन था पहले, अब तो इतने हैं कि डेली पेन बदलते हैं हमारे, और उसको घर में फेंकते हैं, है ना। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो तुम्हारे घर में कितने पेन है यूज एंड थ्रो वाले? देखे हैं कभी इकट्ठे करके रखे हैं? कितने हैं? 10-12 है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे पेन है हमारे घर में। हर एक के घर में अगर जाएंगे ना, इतने इतने पेन निकलेंगे। अभी हम हमारे क्लास के जितने भी है सभी लोग अगर हम सोचेंगे तो एक बड़ी थैली जो है ना वो भर जाएंगे, और उसमें से आधे चालू रहेंगे, आधे बंद रहेंगे। बंद वाले को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए जो है डिस्करेज द यूजिंग ऑफ यूज एंड थ्रो पेन। यूज एंड थ्रो पेन को डिस्करेज करना है, उसकी जगह एक ही पेन अच्छा लो। हर बार 2 बार 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का अगर हम पेन लेते हैं उसको हम बाद में फेंक देते हैं। उससे अच्छा एक आधा कॉस्टली पेन ले लेना और उसको अच्छी तरह से चलाना, और वो बहुत दिन तक चलता है, ठीक है। तो इसमें आप देखे हैं पेपर मेशी भी बताया मैंने। पेपर मेशी का मतलब क्या है, जो वेस्ट पेपर है ना उसको पानी में डुबाते हैं 2-3 दिन, और उसका पल्प बनता है। पल्प म्हणजे लगदा, आणि मग त्याच्यामध्ये फेविकॉल टाकतात, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर टाकतात, आणि मग त्याचे खेळणे बनवतात। माहिती आहे का तुम्हाला? समजा एखादं भांड असेल, त्याच्यामध्ये टाकलं त्याला आणि आतून प्रेस केलं तर ते निघू शकते। साचा ज्याला आपण म्हणू, साच्यामध्ये टाका त्याला, रबरचा साचा असतो, त्याच्यामधून आपल्याला मूर्ती बनवता येते, त्याच्यामधून आपल्याला खेळणे बनवता येतात, आणि मग सुकल्यानंतर त्याला कलर द्या। ओके, सो वी कॅन मेक मेनी थिंग्स, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू बेस्ट। वेस्ट से हम बेस्ट बना सकते हैं। और कचरा जो है हमने कम से कम कचरा
जो है हमारे घर में है, ऑफिस में है, या केमिकल फैक्ट्री है, या दवाखाना है, कहीं पे भी हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे कम से कम जो है वेस्ट जो है उसको हमने क्या करना है, कम से कम वेस्ट होना चाहिए, ज्यादा नहीं। जिससे ज्यादा कचरा फैलता है वो चीजें यूज नहीं करना है। हमारे घर में फ्रीजर में बॉटल होती है, फ्रीज में बॉटल, अच्छी क्वालिटी की बॉटल लेना है। हम क्या करते हैं, बिस्लरी में पानी पीते हैं, वही बिस्लरी में सालों साल उसमें पानी रखते हैं। तो इट इज रॉन्ग मेथड है। उसकी जगह अभी मेटल की भी बॉटल आती है ना, कूल वाली भी बॉटल है क्या किसके पास? मेटल की बॉटल है, कूल वाली बॉटल है यहाँ पे क्लासरूम में। ओके, तो वो जो बॉटल है उसको हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें ठंडा पानी ठंडा ही रहता है ना। अगर हम उसको समर में यूज करते हैं तो कूल वाटर उसमें रहता है। कूल केज मालूम है आपको? कूल केज तो आप यूज करते हैं गार्डन में कहीं गए पिकनिक के लिए, तो हम जो है कूल केज जो है यूज करते हैं। Books, just for fun. Living in a dirty environment can be dangerous, as it may lead to various diseases. अभी इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं बताइए? पीछे में लास्ट में बैठा बोलो, इसमें क्या क्या देख सकते हैं? सामने आ जाओ, जल्दी आ जाओ सामने, इधर से आ जाओ। हाँ, ये क्या क्या देखा है यहाँ पे देखो तो, क्या क्या दिख रहा है? दूर से बताओ। हाँ सर, यहाँ दिख रहा है कि जो ये वो चीख रही है। हाँ, और इस आदमी का है ना सर दुख रहा है। हाँ, और उसे खांसी आ रही है। हाँ, तो क्यों आ रही है? उस कचरे की वजह से। हाँ, कचरे की वजह से। कचरा सभी डस्टबिन में है क्या? हाँ, कचरा कहाँ पे, जहाँ मन चाहे वहाँ गिरा है ना। रोड पे है, रोड के साइड में है, बिल्डिंग में है, बिल्डिंग के कोने में है। ओके, सो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, इसीलिए इन लोगों को परेशानी हो रही है। अब इन लोगों को हो रही है, इसका मतलब हमें नहीं हो रही क्या? हमें भी हो रही है, क्योंकि अगर हम वो कॉलोनी में रहेंगे तो हमें भी हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं ना कि वो जो छींक रहे हैं, हम भी कितने बार छींकते हैं, खांसते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू का परिसर जो है वो क्लीन नहीं होता है, वो डर्टी रहता है। सो इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। तो आज से आपको क्या करना है, शपथ लेना है कि जो भी कचरा जो है हम कहाँ डालेंगे? डालेंगे, डस्टबिन के बाहर में कचरा ठीक है। जितना भी कचरा हो डस्टबिन में डालेंगे। और डस्टबिन में डालते समय पे भी ध्यान रखना है कि कितनी प्रकार की डस्टबिन होनी चाहिए? 2 प्रकार की, एक ब्लू कलर की और दूसरी ग्रीन कलर। ब्लू कलर में जो भी हम सूखा कचरा है उसको डालना है, और ग्रीन कलर में जो भी है वो गीला कचरा उसमें डालना है। ओके, तो ये सब जो बीमारी है, बीमारी की वजह क्या है? कचरा है। पब्लिक प्लेस पे अगर आप देखते हैं है ना, बहुत जगह पब्लिक प्लेस में टॉयलेट होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहां पे भी लोग गंदा कर देते हैं। अब शादी के लिए बहुत बड़ा हॉल यूज करते हैं और बाद में दूसरे दिन अगर आप जाके देखेंगे तो पूरा कूड़ा कचरा सब इधर उधर बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन अब वो मालिक भी सतर्क हो गया है, वो बोलता है नहीं, आपको हर जगह वो डस्टबिन रखता है और वहाँ के लोग बताते हैं कचरा नहीं फेंकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो, हमारे घर में भी हो या बाहर में हो, तो वी शुड टेक केयर है ना अबाउट द गार्बेज। तो हमने क्लीनलीनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, नहीं तो ये जो डिसीजेस है ना, हमारे पास आने में ज्यादा समय नहीं Hence, लगेगा। as responsible citizens, we should keep. हाँ, अब इसमें क्या किया है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन बाय डिस्पोजिंग द गार्बेज प्रॉपरली। अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मीनिंग क्या है, कौन बताता है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बोलो। जिम्मेदार नागरिक। हाँ, जिम्मेदार नागरिक। नागरिक तो सभी है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होना जरूरी है ना। जिम्मेदार कैसे जिम्मेदार रहेंगे, बोलो, क्या जिम्मेदारी लेंगे आप? कि हमें अपना
हाँ, आजू बाजू का सराउंडिंग हमें क्लीन रखना है। सर हमें कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है। कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है। ओके, हाँ सर कचरे को 2 पार्ट में हाँ, कचरे को 2 पार्ट में सेपरेट करना है, गीला अलग रखना है, सूखा अलग रखना है। तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट प्रिकॉशन यू शुड टेक, सभी ने लिखना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हाट प्रिकॉशन यू टेक फॉर क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में जिम्मेदार नागरिक की कौन सी जिम्मेदारियां होती है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पहले हिंदी में लिखो ताकि आपको वो समझ में आएगा, बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। ठीक है, आ गया ध्यान में? इसको सभी को लिखना है। ओके।